اگر آپ کسی کو تڑپ کر یاد کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ خاص نشانیاں ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب دو روحیں ایک دوسرے کو تڑپ کر یاد کرتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمہیں اس مقام تک پہنچائے جہاں تمہارے خواب حقیقت بن جائیں، جہاں تمہارے دل کے ہر دکھ کی جگہ سکون اتر آئے۔ اللہ تمہیں ایسے سکون سے نوازے جو کسی چیز کے چھن جانے سے بھی کم نہ ہو، ایسا اطمینان دے دے جو صرف اس کے قریب رہنے سے ملتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ دعا قبول کرے جو تم نے صرف آنکھوں کے آنسوں میں مانگی ہو، جو کسی سے کہی نہیں مگر رب نے سنی ہو۔ اللہ تمہیں لوگوں کے حسد، بغض اور شر سے بچائے اور اپنی رحمت کے ایسے سائے میں رکھے جہاں تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہارا دل شکر سے لبریز ہو جائے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع بہت اہم اور گہرا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی کو بے حد یاد کر رہا ہے۔ وہ آپ کا پیار، آپ کا کوئی دوست یا کوئی قریبی عزیز ہے جو آپ سے دور ہے، اور اس یاد میں ایک تڑپ ہے، درد ہے، ادھورا پن ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب دو روحیں ایک دوسرے کو اس طرح یاد کرتی ہیں تو کیا اشارے ملتے ہیں۔ یقین مانیے یہ صرف احساسات نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک گہری سائنس ہے، روحانیت اور کائنات کے اصول بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یاد کرنا اور تڑپ کر یاد کرنے میں بہت فرق ہے۔ جب آپ کسی کو نارملی یاد کرتے ہیں تو اس میں ہلکا سا احساس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو تڑپ کر یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کی روح بے چین اور دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور آپ کا پورا وجود اس انسان کو محسوس کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ہماری خواہش ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو لوگ روحانی طور پر گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیار کا رشتہ ہو، دوستی کا ہو یا کوئی اور گہرا تعلق ہو، تو ان کے درمیان توانائی کا جڑاؤ بن جاتا ہے، اور یہ توانائی لفظوں سے نہیں بلکہ روح کے میلاب سے بنتی ہے۔ جب دو لوگ روحانی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگتے ہیں، بغیر لفظوں سے، بغیر کسی گفتگو کے۔ یہ صرف دماغ تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے دلوں کی دھڑکن میں بھی بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے کو یاد کرنے لگتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے تو ٹھیک اسی لمحے دوسرے انسان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کو تڑپ کر یاد کرتی ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ پہلی نشانی، اچانک بے چینی محسوس ہونا۔ یہ کوئی عام بے چینی نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ بے چینی ہوتی ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے۔ آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں، اچانک آپ کو بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ بے چینی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی روح اس انسان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ اس انسان سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ٹھیک اسی وقت وہ دوسرا انسان بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بھی وہی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک فون اٹھاتا ہے اور اسی لمحے دوسرے کی کال آ جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ دونوں کی روحوں کا جڑاؤ ہے۔ دوسری نشانی، سانسوں کا اچانک تیز ہونا اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا۔ جب بھی آپ اس انسان کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سانسیں تیز ہو گئی ہیں،
सीने में एक दबाव सा महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके दिल को जोर से दबा दिया हो। ये अंदरूनी हलचल इसलिए होती है कि जब आप किसी को तड़प कर याद करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग ये समझता है कि कुछ बहुत खास है जो आपसे दूर है, और उसे वापस पाने के लिए आपका पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि रात को अचानक आंख खुल जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, और बस उसी इंसान के बारे में आप सोचने लगते हैं। ये भी एक निशानी है कि उस इंसान की रूह आपको पुकार रही है। शायद वो भी उसी वक्त आपको याद कर रहा हो, शायद वो भी सो नहीं पा रहा है, और आप दोनों की रूहें एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी निशानी, सपनों में उस इंसान का बार बार आना। सपनों में उस इंसान का बार बार आना महज तस्वुरात नहीं होते, सपने हमारी रूह की पुकार होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सो जाता है, लेकिन हमारी रूह जाग रही होती है, और इसी लम्हे रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं, और एक दूसरे को महसूस करती हैं। जब आप किसी को तड़प कर याद करते हैं, तो वो रात को सपने में ज़रूर आता है, और ये सपने इतने हकीकी लगते हैं कि जब आप जागते हैं तो आप कुछ लम्हे के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सपना था या हकीकत थी। आप उस इंसान को इतना वाज़े तौर पर देखते हैं, तो उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसे छूते हैं, उससे बातें करते हैं, और जब नींद से बेदार होते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लगता है जैसे कुछ छिन गया हो। और दिलचस्प बात तो ये है कि कई बार दोनों लोगों ने एक ही रात एक सपना देखा होता है। जब वो बाद में बात करते हैं तो मालूम होता है कि दोनों ने तकरीबन एक ही जैसा सपना देखा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये रूह की मुलाकात होती है। चौथी निशानी, यादों का तूफान। उस इंसान से जुड़ी छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं। आप अपने काम में मसरूफ होते हैं, और अचानक कोई गाना बजता है, और वो गाना आपको उस इंसान की याद दिला देता है। आप सड़क पर चल रहे होते हैं, और आपकी नज़र किसी कपल पर पड़ जाती है। उन्हें देखते ही आपको उस इंसान की याद आ गई। आप कुछ खा रहे हैं, और आपको याद आता है कि ये उस इंसान की पसंदीदा चीज़ थी। आप किसी जगह से गुजरते हैं, और आपको याद आता है कि आप दोनों कभी एक साथ यहाँ आए थे। कोई खुशबू आती है, और पूरी की पूरी याददाश्त बदल जाती है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये यादें इतनी मजबूत होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो लम्हा अभी गुजरा है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे हंस रहा था, कैसे बात कर रहा था, कैसे देख रहा था। ये तफसीलात इतनी गहरी होती हैं कि आप इसे अमली तौर पर महसूस कर सकते हैं। और फिर जब ये यादें ख़त्म होती हैं, तो एक दर्द सा महसूस होता है, क्योंकि वो अब आपके साथ नहीं है। ये यादों का आना वैसे ही नहीं होता, ये असल में तब होता है जब वो इंसान भी आपको याद कर रहा होता है। जब दोनों तरफ से यादों की तवानाई निकलती है, तो वो एक दूसरे से टकराती है, और इसी वजह से ये यादें इतनी मजबूत होती हैं। पांचवी निशानी, आंसुओं की कहानी। ये निशानी बहुत जज्बाती है, बगैर किसी वजह के आंसू का निकल आना। जब आप किसी को तड़प कर याद करते हैं, तो आंसू खुद बहुत निकल आते हैं। आप कहीं भी हो सकते हैं, घर में अकेले हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, या रास्ते में चल रहे हों, अचानक आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि तड़प के होते हैं। ये आंसू उस दूरी के होते हैं जो आप दोनों के दरमियान है। ये आंसू अनकहे लफ्ज़ों के होते हैं, जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। ये आंसू उस प्यार के होते हैं जो हद से बढ़ रहा है, लेकिन जिसे आप बयान नहीं कर सकते। और अजीब बात यह है कि ठीक उसी वक्त दूसरा इंसान भी रो रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, उसका दिल भी टूट रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप आंसू साफ करते हुए फ़ोन उठाते हैं, और उसी वक्त उसका फ़ोन आ जाता है, और आप दोनों को पता चलता है कि आप दोनों रो रहे थे। छठी निशानी, एक तरफा बातचीत।
ये निशानी सबसे ज़्यादा ज़ाती है। जब आप किसी को बेहद याद करते हैं, तो आप उससे अकेले में बातें करते हैं। आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं और ऐसे बातें करते हैं जैसे वो इंसान आपके सामने बैठा है। आप उसको बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा गुज़रा, दिन भर आपकी मसरूफ़ियात कैसी रही, और उसे ये भी बताते हैं कि आप उसे कितना याद करते हैं। आप उससे सवाल करते हैं और दिल ही दिल में उसके जवाब का तसव्वुर भी करते हैं। आप उससे शिकायत करते हैं कि वो आपसे दूर क्यों है, और आप उससे वापसी की गुज़ारिश भी करते हैं, और उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि आप वाक़ई उससे बात कर रहे थे और वो आपकी बात सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। और हकीकत तो ये है कि जब आप किसी को इतनी शिद्दत से याद करते हैं, तो आपकी तवानाई उस तक पहुँचती है और वो महसूस करता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। ये सब करने से थोड़ा-सा सुकून मिलता है और थोड़ा हल्का महसूस होता है। लेकिन साथ ही एक दर्द भी महसूस होता है कि काश वो इंसान इधर ही होता और ये सब सुन सकता। 7वीं निशानी, फ़ोन का इंतज़ार करना। जब आप किसी को तड़प कर याद कर रहे होते हैं, तो आपका फ़ोन आपका सबसे अच्छा दोस्त और दुश्मन दोनों बन जाता है। आप हर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाते हैं और स्क्रीन को चेक करते हैं कि कहीं उसका मैसेज या कॉल तो नहीं आई। आप उसका लास्ट सीन चेक करते हैं और अगर वो ऑनलाइन है, तो आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। आप सोचते हैं कि क्या वो आपको मैसेज करेगा? कई बार तो आप खुद मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि आप उसको क्या मैसेज करें। आप उसकी प्रोफाइल खोल कर देखते हैं, आप उसके स्टेटस चेक करते हैं और उसमें छुपे पैगाम को समझने की कोशिश भी करते हैं। आप उसकी पुरानी चैट खोलकर बार-बार पढ़ते हैं और उस वक़्त को याद करते हैं जब सब कुछ अच्छा था। और सबसे दिलचस्प लम्हा तो वो होता है जब अभी आप उसको याद कर रहे थे, आपने मोबाइल हाथ में उठाया और ठीक उसी लम्हे उसका मैसेज आ गया। आप यकीन करने लगते हैं कि टेलीपैथी हकीकत में मौजूद है और ये आपकी रूहों के बीच कनेक्शन है, जो फिज़िकल डिस्टेंस को पार कर जाता है। 8वीं निशानी, वक़्त का मुख्तलिफ गुज़रना। जब आप किसी को प्यार करते हैं, तो आप हकीकत में उसको महसूस भी करते हैं। जब आप उस इंसान के साथ होते हैं, फ़िज़िकली या फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तो घंटों मिनटों की तरह गुजर जाते हैं। वक्त इतना जल्दी गुजर जाता है कि आप उस इंसान में इतने खो जाते हैं कि आपके लिए हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। न भूख लगती है, न थकावट महसूस होती है और ना किसी और चीज़ का ध्यान रहता है। लेकिन जब आप उससे दूर होते हैं, तो हर मिनट घंटे जैसा लगता है। सुबह से शाम होने में सालों लग जाते हैं। आप घड़ी को देखते हैं कि शायद बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक 10 मिनट ही गुजरे होते हैं। रात को नींद नहीं आती और वो घंटे सालों बराबर लगते हैं। असल में आपकी रूह उस इंसान के साथ ही रहना चाहती है, और जब वो आपके साथ नहीं होता, तो हर पल मुश्किल हो जाता है। 9वीं निशानी, उस इंसान की मौजूदगी को महसूस करना। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया है, वो इस निशानी को अच्छे से समझ सकते हैं। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि वो इंसान पास में ही है। आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक एक अलग सी तवानाई महसूस होती है, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो और आप उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो या छुआ हो। आप मुड़ कर देखते हैं और वहाँ कोई नहीं होता। कभी-कभी आप उसकी खुशबू महसूस करते हैं, जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं होता। कभी आपको लगता है कि किसी ने आपका नाम पुकारा हो। ये सब कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि ये रूहानी जुड़ाव की निशानियाँ हैं।